of the neurons present in the brain. And if you look at this neuron, neuron is composed of this cell body that is called soma, and multiple these dendritic processes, and this is the axon. And this dendritic cells, they make a synapses with the axon of the other dendritic processes of the other neurons, and then the interaction and the neurotransmission is then integrated and transferred to the axon. ठीक है, और axon का जो initial component है, that is transferred the impulse, and it is there is a multiple ion channel which ion channel for the sodium ions. ठीक है, और यहाँ पे all a non action potential जो है वो generate होगा, and it will be then rapidly flow through this axon to the terminal end of the axon, where it again makes synapses with the dendritic cells of the other neurons. ठीक है, और जो ये axon है, it is covered by the membranous process of this oligodendrocytes. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं जो कि अपने मेम्ब्रेनस प्रोसेस के साथ इसकी एक कवरिंग बना रहे होते हैं ऑफ द एक्सोन टू मेक इट इंसुलेट. ठीक है, ताकि इसको इंसुलेट कर सके और जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स की वो फास्ट वहाँ से जा सके. ठीक है, और इसके अलावा जो एस्ट्रोसाइट्स हैं, दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द supporting of this neurons, as well as they are important in their hemostatic process, like they involve in इनकी जो होम्योस्टेसिस है कि न्यूट्रिएंट सप्लाई भी जो है ये न्यूरॉन्स को दे रहे हैं. ठीक है, तो एस्ट्रोसाइट्स भी जो हैं न्यूरोट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, सो न्यूरोग्लाया विच इज एस्ट्रोसाइट्स हैं, एस्ट्रोग्लाया हैं या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, या दे आर माइक्रोग्लाया जो कि स्मॉल साइज माइक्रोग्लाया होते हैं, वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द CNS. ठीक है, एंड another important organization is the blood-brain barrier. And as you know very well, what is the blood-brain barrier? It is a tight junction between the endothelial lining of the vessels and the food process of the astrocytes. So the polar drugs cannot cross this barrier, and to cross this barrier, drug has to be lipid soluble. So that is important to understand. Some drugs like levodopa, it will cross the blood-brain barrier, whereas dopamine could not. तो इसको भी अंडरस्टैंड इस करना इसलिए ज़रूरी है कि हम जो ड्रग दे रहे हैं फॉर द CNS प्रॉब्लम, तो उसको ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस जो है वो कर सकती है या नहीं कर सकती. व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्रग, आइदर दे आर लिपिड सॉल्युबल और पोलर ड्रग्स. ठीक है, but there are some area of the brain where this blood brain barrier is absent, like area postrema, या vomiting center is out of this blood brain barrier. ठीक है, that's why some antiemetic drugs act on the area postrema or vomiting center, and they don't need to pass through this blood brain barrier. Now, what is the how this chemical transmission in the CNS take place, and this synaptic transmission is the same in the central nervous system as in the periphery. Okay? And central nervous system is composed of both brain and spinal cord. And sometimes, as I mentioned earlier, astrocytes are also take active participation in chemical transmission. ठीक है, and these chemical mediators जो कि neurotransmitters हैं, they act as a neurotransmitter, neuromodulator or neurotrophic factors. ठीक है, ये एक तो neurotransmission they carry the sensory impulses from one neuron to the other, और हर level पे उनकी integration होती है, and then they converted into motor nerve impulse or motor messages to the periphery. ठीक है, एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर जिसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो दूसरे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरॉन्स को मॉड्यूलेट कर रहा होता है. और न्यूरोट्रॉफिक जो कि ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे ब्रेन ड्राइव फैक्टर है. जब आप शिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे या डिप्रेशन पढ़ेंगे, तो वन ऑफ द प्यूरिन व्हिच इज ड्राइव फ्रॉम द ब्रेन,
in response to the stress, that is brain drive factor. Okay. Now, important thing to remember is that most of the drugs that act on the CNS, they do so by changing the ion flow. या brain में जितने भी जो functions हैं वो उनके sorry ये just a minute. So most of the drugs which act on the CNS, they produce their effects by changing the ion flow through the transmembrane channel of the nerve cells. Okay? And ion channel and the neurotransmitter receptors in the brain are, we can divide them into voltage gated ion channels or ligand gated ion channels. These ligand gated ion channels sometimes also called inotropic receptors, and uh, metabotropic receptors which are membrane delimited, meaning they are remain within the membrane and they produce their effects by changing the ion flow. And diffusible second messenger, they produces the second messenger like cyclic MP, IP3 and DAG, which diffuses and then activate the other receptors like ion channels and will change the ion through the membrane. ठीक है, तो ये इसकी टाइप है. अब ion channel जो है, जैसे in this diagram you can see this voltage gated ion channel. The protein, this ion channel protein has sensor for the change in potential. So whenever there is a change in potential, there will be change in gating of this ion channel. Okay? And when it open, there will be inflow of the ions inside the cell. Similarly, ligand-gated ion channels, they when the ligand bind to the component part of this ion protein, it will change the gating. जो ये dash line में show हो रहा है, gating process of the ion channel. ठीक है? This is the closed ion channel. ये transmembranous इस तरह ये ion channel जो है ये located होते हैं. And this is the open ion channel. When it is opened by the fluctuation of the potential, ion will move inside the cell. Okay? Inotropic receptors are the ion channels which responds to the ligand. Ligand could be chemical neurotransmitter, and it will bind to the component of this ion channel protein, and after binding it will change the canal of the ion channel, and there is a movement of the ion inside the cell. Okay? Then there is metabotropic receptors. Metabotropic receptors are the receptors which are G protein linked. Okay? And here you can see this G protein. You know very well already कि जो G protein linked receptors क्या होते हैं. इनको हमने बहुत डिटेल में आपको फार्माकोडायनामिक में पढ़ा चुके हैं कि इनकी जो सिग्नलिंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है. ठीक है. But in brain, these G protein linked receptors, they after binding with the ligand, this whole G protein get activated, alpha, beta, gamma, and without separating, it will act directly on the ion channel and will open the ion channel. ठीक है. तो ब्रेन में आप ये देखेंगे कि ये जो G protein या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, उनमें एक तो मेम्ब्रेन डिलिमिटेड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर है. ठीक है, जिसमें डायरेक्टली जो G protein है विदाउट लिविंग द मेम्ब्रेन will stimulate the or will change the ion channels. ठीक है. Secondly, this G protein linked receptor, when it bind with the ligand, it activates the G protein, and this G protein will not directly act on the on ion channel, but it will act on an enzyme, and this activation of the enzyme further change the opening or this gating of the ion channel. ठीक है. तो इसमें जो G protein involved है, that is not directly activating the channel, but it is activating through the activation of enzyme, and that enzyme will produce the diffusible messenger. The second messengers होते हैं like cyclic AMP, IP3 and DAG, which will then change this gating of the ion channel. ठीक है.
अगेन वही डायग्राम है, आप इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड कर लो कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेनस सब्सटेंशियल नाइग्रा विद रिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर चूंकि जी प्रोटीन लिंक्ड है, इसमें सिर्फ अल्फा सब यूनिट्स जो है it will dissociate and will activate the ion channel, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्फा सब यूनिट ब्रेक्स अवे, बाइंड विद द आयन चैनल एंड ओपन इट। तो ये जो चेंजेस हैं थोड़ी इन द ब्रेन न्यूरोट्रांसमिशन, जो कि पेरिफेरी से थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अल्फा चैनल ऑफ द अल्फा पार्ट ऑफ दिस जी प्रोटीन will activate the enzyme, and then this enzyme produce the second messenger, and that second messenger will change the gating process of this ion channel, ठीक है। अब जितने भी ये ion channels है, either they are pentamers or they are composed of 4 subunits, and here is the जो एक classical example दी जाती है, that is of a nicotine receptor. Nicotine receptor composed of 5 pentamers, और ये इसकी 3D पिक्चर है जिसमें ये डिफरेंट हर कलर जो शो कर रहा है एक पेंटामर, ठीक है, एक सब यूनिट। तो दिस इज शोइंग 5 कलर एंड 5 सब यूनिट्स। Regarding synapses and synaptic potential in the brain, these neurons, when they are activated, they causes the post synaptic excitatory potential, ठीक है, जिसे EPSP कहते हैं। Or and that would occur by the stimulation of inotropic receptor, and there is an influx of sodium and calcium which will produces the depolarization, and when this depolarization reaches to the threshold, it will produce postsynaptic potential that is labeled as excitatory postsynaptic potential, ठीक है। तो जहाँ जहाँ excitatory neurons stimulate होंगे, स्पेशली जो इनिशियल पार्ट ऑफ द एक्सोन्स हैं पोस्टसिनेप्टिक, वहाँ पे सोडियम इन्फ्लक्स होगा और रैपिड कंडक्शन होगी, ऑल और नॉन एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट। इनहिबिटरी जो पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल है, दैट इज इन रिस्पांस टू द प्रीसिनेप्टिक ओपनिंग ऑफ in response to the postsynaptic opening of potassium channels, ठीक है। And this efflux of potassium will hyperpolarize the membrane. As a result, there is a inhibitory postsynaptic potential will generated, IPSP जिसे कहिए। और प्रीसिनेप्टिक जो इनहिबिशन होती है, that is because of opening of chloride channel. Similarly, जो प्रीसिनेप्टिक excitation होती है, that is because of opening of calcium channel and sodium channel. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इफ यू गिव अ माइक्रोइलेक्ट्रोड स्टिमुलस, एक्साइटेटरी स्टिमुलस, ठीक है, इट विल कॉज पोस्टसिनेप्टिक एक्साइटेटरी पोस्टसिनेप्टिक पोटेंशियल। और जो इसकी थ्रेशोल्ड होती है मेम्ब्रेन की, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज अबाउट -60, एंड इफ फर्दर a strong excitatory stimulus is given, then this excitatory postsynaptic potential will reaches to the threshold and will produce the action potential. It depends upon the excitatory stimulus. जितना अगर आप repeatedly excitatory stimulus मिलेंगे neurons को, it will reaches to the threshold and will produce the action potential. Similarly, in this diagram, interaction of excitatory and inhibitory synapses. क्योंकि ब्रेन में सब कुछ यही हो रहा होता है कि जो एक्साइटेटरी इम्पल्सेस होते हैं उनको कहीं ना कहीं ब्रेक तो चाहिए होती है, उसके लिए इनहिबिटरी सिनेप्सेस जो हैं, देन दे विल इंटरलिंक एंड दे विल, जिसको आप इंटरन्यूरॉन्स जैसे इनहिबिटरी इन्वॉल्व होते हैं टू इनहिबिट्स द फास्ट एक्साइटेटरी इम्पल्सेस। तो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस और ब्रेक जो है वो चाहिए होती है। This diagram showing that when you give the excitatory stimulus of a strong nature and it reaches to the threshold, action potential generated, and then you give the inhibitory stimulus, so this will convert it into inhibitory postsynaptic potential, and then you give again a strong excitatory stimulus, this will not reach to the threshold, ठीक है। तो यहाँ पे इसको inhibitory जो impulse थी या potential था, उसने इसको एक्साइटेटरी को भी स्लो कर दिया और उसको थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचने दिया। तो ये ब्रेन में न्यूरॉन्स का यही मैकेनिज्म है। जब हम ड्रग्स देते हैं तो ड्रग्स आइदर विल एक्साइट
द न्यूरॉन्स और विल इनहिबिट द न्यूरॉन्स। इस सब को हम जो डिफरेंट डिजीजेस हैं उनके साथ रिलेट करके हम देखेंगे कि ये सब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ओके, जो टॉक्सिन्स, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो इन वोल्टेज गेटेड और लैगिंग गेटेड चैनल्स को टारगेट करते हैं और उससे हम इन चैनल की स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत पहले इस तरह किया जा रहा था, बट इन द लास्ट डेकेड्स अब तो जो है वो बहुत वास्ट स्टडी हो चुकी है। नाउ द ड्रग कैन इवन बी यूज्ड टू टारगेट सिंगल रिसेप्टर्स एंड वी कैन गेट द रिस्पॉन्स। तो ये उससे पहले 10 साल उससे प्रीवियस, क्योंकि सीएनएस की ड्रग जो है वो बहुत परमिटिव एजेस ह्यूमन से यूज की हुई है, लाइक जो फॉर द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फॉर पेन रिलीफ, फॉर फीवर रिलीफ, इन सब के लिए बहुत पुरानी इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बट चूंकि ये थोड़ी इस पे इतनी जो एनाटॉमिकल और उसकी केमिकल और उस पर इतनी ज़्यादा रिसर्चेस नहीं थी, तो कुछ टॉक्सिन जो हैं जो स्पेसिफाई चैनल्स को टारगेट करते हैं, ये भी इन्वॉल्व थे फॉर स्टडिंग, फॉर एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें सोडियम चैनल्स को टेट्राडोटॉक्सिन और बेटाडोटॉक्सिन जो है इट ब्लॉक्स द चैनल्स, ठीक है, जो पफर फिश और कोलंबिया फ्रॉग्स में पाए जाते हैं। सिमिलरली जो पोटेशियम चैनल्स हैं and they are targeted by एपामीन एंड चेरीडोटॉक्सिन, ठीक है। ये आप इंटरेस्ट के लिए पढ़ लें, अदरवाइज आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड इनका कोई वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई एमसीक्यूज में इस तरह का डाल दें तो डाल दें। लाइक कैल्शियम चैनल्स हैं, ओमेगा कोनोटॉक्सिन जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं। सिमिलरली जो एगाटॉक्सिन है वो भी पी टाइप जो चैनल्स उनको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। निकोटिनिक जो लैगिंग गेटेड निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं उसको बंगारोटॉक्सिन जो है वो इरिवर्सिबली ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और ये मैरीन स्नेक में होता है, तो ये तो इतना आपको आना चाहिए। गाबा ए रिसेप्टर है, उसको पिक्रोटॉक्सिन उसका एंटागोनिस्ट है, इट विल ब्लॉक द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस स्वेर कन्वर्शन, ठीक है। स्टिक्निन है जो कि कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है एट द ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर विद द रेंचा सेल्स। इसी तरह एएमपी रिसेप्टर्स हैं जो कि फ्लेंगोटॉक्सिन उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉक्सिन हैं जो which are used to characterize the ion channels. Now, where this CNS drugs act, either they act presynaptically or they act postsynaptically. Presynaptically, you can see they can either act at the level of synthesis where the neurotransmitter is synthesized. ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4, ये वो स्टेप्स हैं जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में नर्व टर्मिनल में होल होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड एंड देन स्टोर एंड देन इन द सम पार्ट ऑफ इट इज मेटाबोलाइज्ड एंड रिमेनिंग पार्ट देन रिलीज, ठीक है। और रिलीज जो है वो नंबर 5 पे, आफ्टर रिलीज इट इज रीअपटेक। तो ड्रग्स कैन एक्ट आइदर एट द अपटेक लेवल, जैसे कोकेन है या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, दे विल ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द मोनोमीन, जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है। तो जो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, उनका जो मेन एक्शन है वो रीअपटेक को ब्लॉक करना और सिनेप्सिस के लेवल पे ट्रांसमिशन को एनहांस करना। सिमिलरली जो रिलीज है लाइक एम्फेटामीन है, वो रिलीज ज्यादा करा देती है एंड कुछ जो बॉtulinum टॉक्सिन है वो रिलीज को ब्लॉक कर देगा। सिमिलरली जो स्टोरेज में जैसे रेजरपिन है, इट कैन डिप्लीट द स्टोर्स, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म के लेवल पे जैसे यहाँ पे मोनोमीन ऑक्सीडेजेस हैं विच आर मेटाबोलाइजिंग द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन एंड डोपामीन। तो monoamine oxidase inhibitors can be used to stop this metabolism and to increase the level of norepinephrine and serotonin, और ये उसमें यूज होते हैं एंटी डिप्रेसेंट में, ठीक है। तो जब हम एंटी डिप्रेसेंट डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें फिर आएंगी, तो इससे बेसिक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में देखना है। और आफ्टर रिलीज दे एक्ट ऑन द पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स एंड as I have told earlier that postsynaptic metabotropic receptor will change the ionic conductance, ठीक है। क्योंकि इससे आगे
आयन चैनल को ही जो है मॉड्यूलेट करना है। So by activating this metabotropic receptors, the pose it will change the ionic conductance. ठीक है, ionic conductance या कम होगी या ज्यादा होगी। अगर इनहिबिटरी एक्शन आना है तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आयनिक कंडक्टेंस जो एक्साइटेटरी है तो दे विल इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमिशन। और ये जो 7th स्टेप है जिसमें इट इज एब्जॉर्ब टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड इन द ब्रेन सराउंडिंग टिश्यूज आर ग्लाया। एंड ग्लाया में जैसे हम ग्लूटामेट को हम डिस्कस करेंगे, ग्लूटामेट इज टेकन अप बाय द एस्ट्रोसाइट्स या माइक्रोग्लाया जो भी है ये, it will convert into glutamine by the glutamate synthetase। और वहाँ से फिर ये ग्लूटामिन रिलीज होती है एंड देन इट इज अगेन taken up by this presynaptic nerve terminals, और वहाँ से फिर से ग्लूटामिन जो है वो ग्लूटामेट में सिंथेसाइज होती है। सो यहाँ पे भी फिर हम ड्रग दे सकते हैं जो कि इसको आइदर ग्लूटामिन सिंथेटेज को ब्लॉक कर दे या जो ट्रांसपोर्टर है फॉर द स्टोरेज उसको ब्लॉक कर दे। तो दिस इज द दिस पिक्चर शोइंग द साइट ऑफ ड्रग एक्शन, जो कि हम अब क्योंकि सीएनएस में 14 चैप्टर हैं, हर चैप्टर जो है वो एक डिफरेंट डिजीज से रिलेटेड है। जैसे एपिलेप्सी है और शिजोफ्रीनिया है, पार्किंसोनिज्म है। ठीक है, और ये सब जो ड्रग्स हैं फिर इन्हीं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स पे या इन्हीं साइट्स पर एक्ट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एनाटॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड लिमिटेशन ऑफ अवेलेबल टेक्निक्स, बट इन द लास्ट 2-3 डेज लास्ट डेकेड्स में तो इस पे काफी रिसर्च हो चुकी है और नाउ इट इज पॉसिबल टू टारगेट द एनी स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर। So what should be the criteria for labeling a chemical एज ए न्यूरोट्रांसमीटर? हम कब कह सकते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है? ठीक है, तो आप तभी उसको लेबल कर सकते हैं कि इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर व्हेन इट फुलफिल द क्राइटेरिया, इट इज मैक्सिमम accumulated maximum concentration is found at the level of release, जहां उसने synthesize होना और release होना है, and that is presynaptic neuron। तो localization इसकी वहां पे होना जरूरी है। Secondly, when there is a change in voltage, it should be released। ठीक है, तो सेकंड इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि रिलीज होना चाहिए इसको वहां से। और ये रिलीज भी जो है ये कैल्शियम डिपेंडेंसी पे है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और आफ्टर रिलीज दिस न्यूरोट्रांसमीटर शुड प्रोड्यूस सिनेप्टिक मिमिक्री, यानी अगर वो कोई एक्साइटेटरी न्यूरॉन है तो उसको एक्साइटेटरी न्यूरॉन वाले इफेक्ट सारे प्रोड्यूस करने। लाइक जो मिमिक्री उसकी फिजियोलॉजिकल व्यू अगर आप देखें यानी कि वही एक्शन प्रोड्यूस करे, और फार्माकोलॉजिकल व्यू में अगर आप ड्रग दे रहे हैं विच इज एक्टिंग विच इज आइदर increasing the release of neurotransmitter or block the neurotransmitter release, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकें कि क्या इफेक्ट आएंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन जो सेलुलर लेवल पे है वो दो तरह से है। जो उसके न्यूरॉन्स फाइबर्स हैं दे आर अरेंज आइदर इन अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म, जिसको आप कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसको आप कहते हैं हायरार्किकल सिस्टम। ठीक है, तो हायरार्किकल सिस्टम में जो फाइबर्स हैं दे आर अरेंज इन लेयर्स एंड दे आर द मेनली दे और receptors are they take the perception of the sensory and motor control। तो sensory और motor control जो है वो इस hierarchical system में आता है। ठीक है, और इसमें जो there is a burst of information, phasic form में information जो है वो transmit होंगी all or none, यानी कि एक bulk या एक burst of information will be travel and then जो इसके फाइबर्स हैं मेनली वो माइलिनेटेड होंगे, उसकी फास्ट रैपिड कंडक्शन होगी। और टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स इसमें होंगे, प्रोजेक्शन और रिले। ठीक है, एक जो प्रोजेक्शन और रिले जहाँ पे रिले हो रहा होता है, और लोकल सेकेंड न्यूरॉन जो कि इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। एंड सेकेंडली इसके साथ इम्पोर्टेंट ये है कि दे हैव ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांसमीटर जो इसमें एक्साइटेटरी मेनली इन्वॉल्व होते हैं,
जिसमें ग्लूटामेट आ जाता है और एस्पार्टेट आ जाता है। ठीक है, तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट जो कि एक्साइटेटरी हैं वो इससे ज़्यादा रिलीज हो जाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हायरार्किकल सिस्टम है इसमें दीज आर द रिले एंड प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स। यहाँ से देखिए आप एक्सॉन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इट इज रिलेइंग ऑन द अदर सेल बॉडी। ठीक है, तो दीज आर रिले न्यूरॉन, यानी फर्स्ट ऑर्डर जो भी इम्पल्स आ रही है इट विल रिले एंड देन सेकंड ऑर्डर टू द अदर न्यूरॉन्स। सिमिलरली दीज आर द इंटरन्यूरॉन्स जो कि इनहिबिटरी नेचर है, और इनहिबिटरी में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है मेनली वो गाबा होता है एंड ग्लाइसिन। ठीक है, तो ब्रेन में ज़्यादा गाबा है, और जो स्पाइनल कार्ड के लेवल पे इनहिबिटरी न्यूरॉन है स्पेशली वहाँ जो इंटरन्यूरॉन है उसको रेंशा सेल्स के नाम से वो जाना जाता है, और वहाँ पे क्या रिलीज हो रहा था, ग्लाइसिन। And these inhibitory neurons either they produce impulses in feed forward या फिर recurrent impulses, तो इस तरह ये inhibit कर होते हैं to this excitatory released impulses। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को ये इस तरह एक कंट्रोल हो रहा था, एक ब्रेक आ जाती है अगर वरना सारी एक्साइटेशन एक साथ इस तरह जा रही हो। एक होता है एक्सोनिक इंटरेक्शन, स्पेशली ये स्पाइनल कार्ड में जो है ये आप देख सकते हैं कि जो इनहिबिटरी एक्सोन है of the interneuron, it is making the synapses with the axon of the this excitatory neuron। ठीक है, तो जो रिले न्यूरॉन्स है उनके साथ एक्सो एक्सोनिक इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं और ये मॉड्यूलेट कर होते हैं। यहाँ से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एंड इट विल मॉड्यूलेट द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन। ये तो हमारा फर्स्ट जो एक है वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। सेकेंडली जो ब्रेन न्यूरॉन्स हैं दे आर नॉन स्पेसिफिक और डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम में फॉल करते हैं, एंड इनका ये होता है कि दे राइजेस फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जिनको आप न्यूक्लियाई कह सकते हैं, एंड देन दे प्रोजेक्ट टू द वाइड एरिया ऑफ सीनस। ठीक है, किसी एक लोकलाइज न्यूरॉन से इसके फाइबर्स निकलेंगे एंड इट विल diverge repeatedly and will then projected to the wide area of CNS। उसके एग्जांपल ऐसे है कि जैसे ये नॉरएपिनेफ्रिन पाथवे को अगर आप एज एग्जांपल देखें ऑफ नॉन स्पेसिफिक और डिफ्यूज न्यूरोनल सिस्टम, जो मेन न्यूक्लियस है फ्रॉम वेयर दिस नॉरएडिनर्जिक पाथवे इज अराइजेस दैट इज लोकस सेलुलस। ठीक है, और एंड इट इज प्रेजेंट इन पॉन्स एंड ओनली about 10,000 इसके ये न्यूरॉन्स होते हैं, and from here there are number of fibers they project to the cortex, cerebellum, spinal cord, ये पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली दे आर कंट्रोलिंग जितने भी इमोशनल वो फीलिंग्स हैं या इमोशनल जो फंक्शन है ऑफ द ब्रेन, जिसमें अराउजल है, स्लीप है, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है, मूड depression or elevation of the mood, all this is controlled by this norepinephrine pathway। ठीक है, और इसमें जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो इस पाथवे को मेनली टारगेट करते हैं। एम्फेटामिन है जो कि CNS स्टिमुलेंट्स हैं वो इसको टारगेट करेगा। क्लोनिडीन जो कि अल्फा 2 एगोनिस्ट है एंड इट विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। सिमिलरली मिथाइलडोपा व्हिच आल्सो एक्ट एज अ false neurotransmitter at the alpha 2 and will decrease the blood pressure। फिर कोकेन है जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसमिशन को जो उसका रीअपटेक है उसको ब्लॉक कर देती है। इस पाथवे में मेनली ये वाली ड्रग्स इन डिजीजेस के साथ हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में ये डिजीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है फ्रॉम द लोकस सेलुलस जो कि पॉन्स में है, यहाँ से ये फाइबर्स हर एरिया में जा रहे हैं, सेरिबेलम में, सेरिब्रम में और पॉन्स और हाइंड ब्रेन और एवरी स्पेस। ठीक है, फिर सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। ठीक है, उसमें पहले हम उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, लाइक जो न्यूरोट्रांसमीटर विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स फर्दर जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं जैसे एसिटाइलकोलिन, और फिर मोनोमीन्स हो सकते हैं। मोनोमीन्स में डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन है,
देन डाई, ठीक है, ये मोनोमीन के अलावा हमारे पास डायमीन भी होता है, दैट इज हिस्टामीन। तो हिस्टामीन जो है वो भी ब्रेन में इसी तरह प्रेजेंट होता है। देन पेप्टाइड्स है, ठीक है, पेप्टाइड्स में एनो है, ओरेक्सिन है, और नाइट्रिको एंडोकैनाबिनाइड्स हैं। एंडोकैनाबिनाइड्स भी जो हैं वो ब्रेन में इनकी जो है वो रिवर्स न्यूरोट्रांसमिशन होती है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में जो ब्रेन में इन्वॉल्व हैं, ग्लूटामेट है, एस्पार्टेट है, एंड होम्योसिस्टेट है, ठीक है। And they are released by calcium-dependent exocytosis from the presynaptic nerve terminal into the synapses, and then they act on the postsynaptic receptors, and they are cleared by transported to the surrounding glia. ठीक है, converted to glutamine by glutamine synthetase, and they're taken up by nerve terminal and converted back to the glutamate by the enzyme glutaminase। ये मैंने अभी जैसे शुरू में थोड़ा सा बताया था आपको कि इसका क्या जो है साइकिल है ग्लूटामेट का, और फिर ये अल्टीमेटली वेजिकल में स्टोर हो जाती है बाय द ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर। इस डायग्राम में आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक मेन डोमिनेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इन द ब्रेन। This glutamate is synthesized from the glutamine by the enzyme glutaminase, and then it gets stored in the vesicle by glutamate transporter, which is then release glutamate by the presence of calcium। क्योंकि जब भी voltage change आएगी, there is influx of calcium, and this influx of calcium will result exocytosis of these vesicles, and then there is a release of glutamate। ग्लूटामेट विल बाइंड टू द पोस्टसिनेप्टिक रिसेप्टर्स। तो इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो दोनों टाइप के हैं, आइनोट्रोपिक भी हैं और मेटाबोट्रोपिक भी हैं। मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स और जो आइनोट्रोपिक हैं जिसमें AMPAR है और NMD है, ठीक है, ये अब्रिविएशंस हैं, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट एंड अल्फा अमाइनो जो मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड रिसेप्टर्स, ठीक है, ये दोनों आयन चैनल्स हैं। दे आर एक्टिवेटेड बाय दिस ग्लूटामेट, और फिर आगे रिस्पांस प्रोड्यूस होगा। और रिस्पांस क्या होगा फिर, either there is influx of sodium or calcium, और पोस्ट सिनेप्टिक एक्साइटेटरी पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा, और देन जो सेंसेशंस है, सेंसिंग इंपल्स, इट विल बी प्रोपेगेटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। और इसकी फेट ये है कि इट इज टेकन अप बाय द एस्ट्रोग्लिया, converted into glutamine by glutamine synthetase, and then it is released again, it is taken up by the nerve terminals, and then cycle is repeated, ठीक है। इस तरह ये रीसाइक्लिंग इसकी होती रहती है। ग्लूटामेट के दोनों टाइप के रिसेप्टर्स हैं, आइनोट्रोपिक भी जैसे मैंने अभी डायग्राम में शो किया, और उसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं। एंड आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर AMPA, KA एंड NMDA। ये तीनों ग्लूटामेट आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और इसमें जो AMP है दैट इज अल्फा अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल आइसोक्साजोल प्रोपियोनिक एसिड, इसकी एब्रिविएशन है। और जो कैनिक एसिड है K, और NMD इज N मिथाइल डी एस्पार्टेट, ठीक है। तो दीज आर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट व्हिच इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इसके जो ग्लूटामेट के मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, दे आर G प्रोटीन लिंक्ड मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, और इसकी आगे फर्दर 8 सब यूनिट्स हैं, ठीक है। यानी मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर 1 to 8, और इनको फिर 3 ग्रुपिंग में कर लिया गया है, 1, 2 and 3। और इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इसलिए है कि जो ये दे आर इन्वॉल्व इन जो मेमोराइजेशन होती है, ठीक है, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आइनोट्रोपिक में जो AMP है, they are present at all neurons, they are tetramer's, 4 subunits हैं, ठीक है, and they are permeable to the sodium and potassium but not to the calcium। ये इनकी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जो AMP है that is present on the inhibitory interneurons and it lacks the glutamate A2 subunits and it is permeable to calcium। तो ये इनमें वेरिएशन है
कि जो हेटेरोटेट्रामर्स हैं उनमें 4 सब यूनिट्स हैं, A1 से लेके A4 तक, और मोस्टली इसमें A2 है which is permeable to sodium and potassium ions but not to the calcium, ठीक है। और जो एक AMP है जो कि इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन पर है, ठीक है। ये तो मैं बात कर रही हूँ एक्साइटेटरी इंटरन्यूरॉन्स। जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स पर हैं, they lack this glutamate A2 subunits and it is permeable to calcium, okay? जबकि जो हेटेरोटेट्रामर्स हैं वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को परमेबल हैं। फिर काइनेट रिसेप्टर्स हैं, they are not uniformly distributed in the CNS, they are present only on the hippocampus, cerebellum and spinal cord, ठीक है। वहाँ पे इनका मेन जो है कंसंट्रेशन है। एंड ये सारे रिसेप्टर आप डिस्कस जब जनरल एनेस्थीसिया आप पढ़ेंगे उसमें जितने भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं वो मेनली इन्हीं रिसेप्टर्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। ये जो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर ऑफ ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है उनको जाके टारगेट करते हैं। सिमिलरली जो एपिलेप्सी की ड्रग्स हैं क्योंकि उसमें एक्साइटेटरी एक्शन ज़्यादा हो रहा होता है, कोई एक फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन रिपीटेडली हो रही होती है, तो हमने उनको टारगेट करना होता है टू इनहिबिट दैट एक्साइटेटरी इम्पल्सेस, ठीक है। उसमें फिर अगेन यही रिसेप्टर्स फिर आ रहे होंगे जिनको ये टारगेट कर रही होती है ड्रग्स, AMPA, काइनेट रिसेप्टर, ठीक है। एंड और इनके जो आगे आयंस हैं दे आर सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, और थोड़ा उन्हें कहाँ वेरी करता है ये भी मैं भी आपको साथ बता रही हूँ। दिस काइनेट रिसेप्टर आर परमेबल टू सोडियम एंड पोटेशियम बट सम at some places also to the calcium as well, ठीक है। अच्छा, अनोट्रोपिक रिसेप्टर जो थर्ड टाइप है NMDA, इट इज प्रेजेंट एट ऑल न्यूरॉन्स, और तभी आप जब पढ़ेंगे जनरल एनेस्थेटिक तो वो NMDA रिसेप्टर पे उनका मेन एक्शन आ रहा होता है एंड दे आर प्रोड्यूसिंग स्लीप लाइक इफेक्ट, ठीक है। एंड दे आर हाईली परमेबल टू कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तीनों को ही ये परमेबल है। एंड इन एडिशन टू ग्लूटामेट दे आल्सो नीड बाइंडिंग ऑफ ग्लाइसिन। अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट एक बात है जो आपको याद रखनी है कि NMDA रिसेप्टर जो है वो तभी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा और आगे सोडियम पोटेशियम की ओपनिंग होगी जब इसके साथ ग्लूटामेट यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक ग्लूटामेट बाइंड करे, साथ अनदर साइड पे ग्लाइसिन बाइंड करे, ठीक है। तो इसके लिए दोनों चीजें रिक्वायर्ड होंगी, तो ग्लूटामेट भी बाइंड हो और ग्लाइसिन भी एक सेपरेट साइड पे बाइंड हो, एंड these two requirements for NMDA channel to open, तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। एंड then it will bring the membranes depolarization, आगे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल्स तभी ओपन होंगे अगर इन रिसेप्टर्स पे ग्लूटामेट के साथ साथ एडजेसेंट साइड पे ग्लाइसिन का अटैच होना भी जरूरी है, ठीक है। और पोस्ट सिनेप्टिकली ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर प्लास्टिसिटी, उसमें थिकनिंग होना शुरू होती है। फिर हमारे पास जो इसी की सेकंड टाइप है ग्लूटामेट की, वो मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। 3 ग्रुप्स हैं इसके भी, और ये भी पोस्ट सिनेप्टिकली जैसे मैंने डायग्राम में शो किया कि ये आगे रिसेप्टर्स को आयन चैनल्स को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी क्या होती है, PSD? इट इज प्रेजेंट एट एक्साइटेटरी न्यूरॉन एंड थिकन पार्ट AMPA रिसेप्टर, उसमें NMDA रिसेप्टर सेंटर में होगा, और जो मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर है वो बिल्कुल उसके आउटसाइड में, ठीक है। इसमें सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं, इसका फोल्डिंग प्रोटीन्स हैं, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं, एंड दिस इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन मेमोराइजेशन, जो आप याद कर होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर गाबा एंड ग्लाइसिन, जो कि जब रिलीज होंगे तो इनहिबिटरी सिनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, और मेनली जो गाबा की फर्दर टाइप्स हैं A और B है, A थोड़ा फास्ट है और B स्लो है, ठीक है। और चूंकि जो फास्ट है A वो क्लोराइड चैनल्स को मॉनिटर कर रहा होता है, और जो B है वो मेटाबोट्रोपिक है और उसमें स्लो रिस्पांस आएगा। गाबा और ग्लाइसिन दोनों जो है दे आर अबंडेंट एट नाइट्रोसाइटेट सिस्टम, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम अभी नेक्स्ट आगे सेडेटिव ड्रग्स पढ़ेंगे तो उसका भी इस गाबा चैनल के साथ एक मेन जो एक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इन्हीं पे आएगा।
जब ये ओपन होते हैं, दे ओपन द क्लोराइड कंडक्टेंस और आगे इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। बी रिसेप्टर गाबा बी जब ओपन होते हैं, दे ओपन पोटेशियम चैनल्स एंड क्लोजेस द कैल्शियम चैनल, तो दे विल पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिटरी रिस्पांस आएगा। ग्लाइसिन जो है दैट इज मोर न्यूमरस इन द स्पाइनल कार्ड एंड इट इज इनहिबिटरी। इफ इट इज इनहिबिटेड बाय स्ट्रिक्निन जो इसका एक स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट है, तो देयर विल बी स्फीयर कन्वर्जन विल प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये भी क्लोराइड कंडक्टेंस को ही कंट्रोल कर रहा है। एसिटाइलकोलिन बी जो है 5% ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड दे आर जी प्रोटीन लिंक्ड एंड दे ब्रेन में जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे सबसे ज्यादा उनका इफेक्ट है वो M1 रिसेप्टर है एंड दे आर रिलेटेड टू द कॉग्निशन एंड मेमोरी, ठीक है। That's why in Alzheimer disease there is a deficiency of these M1 receptor or cholinergic fibers, and then cholinesterase inhibitor drug like rivastigmine is used to enhance the memory. ये सब आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो इन द ALS, ठीक है। तो एस्टाइकोलिन भी डिफ्यूजेबल सिस्टम में आती है, जो एक जगह इसके लोकलाइज न्यूक्लियाई हैं एंड देन इट्स स्प्रेड टू द होल सेरिब्रम। डोपामीन है, डोपामीन का वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन है जो पार्किंसोनिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसके अलावा शिजोफ्रेनिया में भी, और इसके स्पेसिफिक वहाँ पे जो सिनेप्सिस हैं और रिसेप्टर्स हैं, वी विल डिस्कस इन द टॉपिक अंडर पार्किंसोनिज्म एंड शिजोफ्रेनिया, ठीक है। और इनमें मेनली जो रिसेप्टर्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं, D1 से D5, और इनके जो आयन चैनल्स कंट्रोल में आते हैं वो पोटेशियम चैनल आते हैं, ठीक है। और D2 रिसेप्टर द मेन डोपामिन सब टाइप, जिसपे हमने आगे डिफरेंट डिजीजेस डिस्कस करेंगे। एंड बाय इट्स स्टिमुलेशन साइक्लिक AMP भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि डोपामिन के जो न्यूक्लियाई वो मेंटल टेक्निकल एरिया में है, सबस्टेंशिया नाइग्रा में, एंड देन इट्स स्प्रेड टू द इट्स प्रोजेक्शन टू द सेरेब्रम, एंड वो जो बीच में हम देखते हैं कोलेजम उसमें दिखाई दे रहा है। सेरोटोनिन है और ओपियाइड्स पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। और टेकिकाइनिन्स हैं, एंडोकैनाबिनॉइड्स हैं, ये आपकी बुक में सब दिया हुआ है। कैनाबिनॉइड्स का एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये इसमें रिट्रोग्रेड जो है यानी पोस्ट सिनेप्टिक से रिलीज होती है और प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर पे एक्शन इसका आता है, ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस सबको देख सकते हैं समरी। एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है we will discuss the individual topic of the CNS one by one. Any question?